इस तरफ खत्म हो गए सारे हेयर रूट, रादर ये larger size blood vessels दिख रहे हैं, these all. So this red area which has got this translucent, that stratum lucidum चौड़ी हो गई शीशे की दीवार की तरह पे, उसके अगेंस्ट आपको ब्लड वेसल है, तो इस तरफ से बड़ा ग्लोई रेड एरिया या वर्मिलियन जोन दिख रही है, isn't it? Okay. अच्छा, अब इससे हमने मूव करना है इनर सरफेस की तरफ। ये हम इनर सरफेस पे आ गए, एपिथेलियम और वाइडर हो गई है बट नॉन केराटिनाइज्ड। इसके अगेंस्ट ये जो बंचेस मिल रहे हैं, these are all the minor salivary glands. Can you see that? Yes, right? और इसकी एक्सक्रीटरी डक्ट बाहर टच कर रही है, जो कि अंदर आपके म्यूकोजा में म्यूकस पोर आउट करेगी और अपनी सिक्रीशन डालेगी और आपका मॉइस्चर बरकरार रहेगा। यहाँ पे आपको नो सेबेशियस, नो स्वेट, नो हेयर। So this is all these three surfaces are under your view. Okay. So that was all about concentrate. We are looking on the superior surface of your tongue. Can you give the introduction of tongue in any form? Yeah, what it is? Yeah, what it consists of? We talk and talk and talk. So yeah, it's a bulk of skeletal muscles. Voluntary talking. इसीलिए इसमें पकड़ है, ऐसे ही है ना? Okay. So there is no bone inside. But how harsh it can perform, how rude it can be, but at the same time it can be a polite one, right? So we have to use it accordingly. Okay? बहुत अहम है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना। So we have to learn the structure that it has got. So superiorly we are looking into. So your lung is divided into anterior 2/3 and the posterior 1/3 through a V-shaped sulcus called as sulcus terminalis. Okay. Now, what you see that your tongue has got this superior surface called as dorsum of your tongue. इसको आप क्यों dorsal कहते हैं? If you imagine like your foot, उसकी upper surface को आप कहते हैं dorsum और उसके lower को कहते हो ventral. आपकी tongue भी बिल्कुल ऐसे ही है आपके. When you protrude it out, so the upper surface is the dorsum of the tongue. Very important, ये आपने learn करना है. Doctor, last I think is you're doing something. A person behind you wearing the veil is toward the dorsum, and the lower is the ventral surface. Okay. इस पे आप क्या observe करते हो कि the dorsum that is roughened. अगर आपने अपनी tongue को feel किया, ये खुरदरी है ऊपर से, roughened है. But the lower or the, you would say, the ventral surface, I would say, is moist and soft, having no that rough features, right? So the reason behind the roughness of your dorsum is due to the papilla over it. Lingual papilla से आपकी tongue that is filled up, that is why you observe it as a roughened. Okay, that is the story about the anterior 2/3. But you observe that the posterior 1/3 is again roughened due to lingual or so many lymphatic nodules are there, right? So lingual tonsils you will observe over there, giving the nodular look, right? Now we will study that how these different papilla behave or appear on your tongue. They have got 4 types of papilla: the filiform, the fungiform, the circumvallate, and the foliate. Right? So, isn't it easy कि 3 के नाम F से शुरू हो रहे हैं और एक circumvallate है? So easy to cram, easy to remember. So what happens? That the filiform, these are spread all over your tongue, and they are maximum in number. ठीक है, जैसे मैं कहूँगी ये मेडिकल स्टूडेंट है, सारी जगह पे फैले हुए पूरी क्लास में. You could be the filiform papillae, right? But cylinder, thin, tapering end के साथ हो, ठीक है? Which is bending forward. आपका जैसे हेयर की लुक होती है ना, उस किस्म की एक लुक आप समझ लें कि टेपरिंग एंड है, बैकवर्ड टर्न है और spread it all around. So they are like this, called as filiform papillae. Epithelium ऊपर क्या होती है? Roughly, अगर somebody asks you
epithelium on the dorsum of the tongue? Yeah, you can say partially keratinized, ठीक है? Stratified squamous keratinized के भी टिश्यू हैं, दूसरे नॉन केराटिनाइज के भी आ रहे हैं, तो पैराकेराटिनाइज कह सकते हो, बट इन जनरल यू कैन से स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड पोर्शन, वो हम देखेंगे कहाँ ऑब्जर्व करें. अच्छा, अगर आपका टंग का लोअर या इंफीरियर एज जिसको वेंट्रल सरफेस कहते हैं उसकी एपिथेलियम पूछी जाए तो व्हाट यू वुड से? या सेम एज दैट ऑफ योर इनर सरफेस ऑफ द लिप. इज इट क्लियर? ओके. अच्छा, जो आपने अब ये फिलीफॉर्म पेपिली का इंट्रोडक्शन सुना कि इसकी लुक कैसी है और ये थ्रेड लाइक है सॉर्ट ऑफ. अच्छा, इसमें एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड, ठीक है? अच्छा, epithelium is stratified squamous keratinized but no taste buds in it, right? टंग का काम क्या है? एक तो सारा दिन बोलना और खाना पीना और चखना, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स बरी किए हुए जो आपको ये ओरल सरफेस पे मिलेंगे, एपिग्लॉटिस तक जा रहे होंगे और प्रीडोमिनेटली आपको टंग के ऊपर मिल रहे हैं डॉर्सल सरफेस में, ठीक है? So these are the filiform papilla. Then we come across the fungiform. They are present near the tip of your tongue. कि अगर आपका tip of tongue का section कट करके आपके सामने आ जाए histologically, then you observe. Okay, how they appear? They have got the mushroom appearance. इसकी जो superior surface होगी इस fungiform की, ये mushroom की तरह होगी. Wider top है और narrow इसकी base है. Epithelium it has got the what? नॉन केराटिनाइज्ड, पार्शियली केराटिनाइज्ड इस किस्म की एपिथेलियम, ठीक है? नॉन केराटिनाइज्ड बट व्हाट इट कैरीज, इट कैन हैव, ये अगर आपको डॉटेड से पेल बॉडी दिख रही है, दीज आर द टेस्ट बड्स. एपिथेलियम नॉन हो चुकी है लेकिन कैरिंग द टेस्ट बड्स इन इट, राइट? देन वी ऑब्जर्व द थर्ड टाइप ऑफ पेपिली, दैट इज वेलेट कह लें या सर्कमवेलेट, एंड दे आर प्रेजेंट वेयर along this V-shaped sulcus terminalis anterior to it, right? You get it? और ये आपको दिख रहे हैं ऑलमोस्ट 8 से 10-12 कर लीजिए. तो इसका टॉप कैसा है? डूम शेप, राइट? एंड हैविंग द ऑन बोथ साइड्स द ट्रेंचेस. ट्रेंचेस क्या होती हैं? कभी आपने रैबिट को देखा, वो खुदाई करके जमीन के अंदर ट्रेंच खड्डे बना लेता है, ठीक है? तो इसके दोनों तरफ कुछ इस किस्म के ट्रेंचेस है. एपिथेलियम अगेन वही है जो फंगिफॉर्म पे थी, ठीक है? नॉन केराटिनाइज्ड. और आप इसके इन ट्रेंचेस पे जो साइड पे ये बहुत सारे डॉट वाइट से या पेल कलर देख रहे हो, दीज आर द टेस्ट बड्स, ठीक है? वो टेस्ट बड्स सारे अपने सिक्रीशन डालेंगे तो ये फिर ऊपर सरफेस की तरफ आ जाते हैं, इजंट इट? नाउ द फोर्थ वैरायटी इज द फोलिएट. ये फोलिएट पेपिली इनिशियल लाइफ तक होते हैं, किड्स में आपको प्रोमिनेंट मिल जाएंगे, बट एज वी ग्रो इन एडल्ट्स यू हार्डली फाइंड देम. एंड वेयर दे आर प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट एज अ oblique running or transverse ridges against the sides of your tongue. ठीक हो गया? Is it clear? So that is about the papillae present spread over the dorsum of your tongue. Why it looks so nodular or ruffled. और ये अल्लाह ताला ने क्यों लगाए हैं? To pick different tastes. अच्छा, कौन कौन से हम टेस्ट अप्रिशिएट कर लेते हैं? स्वीट, sour, bitter, salt, bitter. अच्छा, जब आप कोई कड़वी चीज खाते हैं, यूजली एलिमेंट के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है. पहले तो बड़े मजे से वी यूज्ड टू च्यू देम, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है यार ये तो कड़वा था. क्या रीजन हो सकता है? हमें पता नहीं चला. कहाँ होंगे उसके पीछे? या वेरी गुड, लॉजिकली सिंपल. सो दे आर प्रेजेंट ऑन द बैक, राइट? सो बिटर सेंसेशन हमें वहां जाके आती है, ये रीजन है इसका. नहीं तो हम उसको सिर्फ टिप तक लाते ही थूक दें, लेकिन जब तक हम उसका मजा लेना शुरू करते फिर पता चलता है कि कड़वा था. तो बाकी इर्द गिर्द आपको स्वीट और एजेस पे, डॉर्सम पे ये सॉल्ट और साई, ये आपको टेस्ट, ये मेन डिवीजन है. उसके अलावा आप देखते हो सो मेनी टेस्ट वेरिएशन वी एप्रिसिएट, ठीक है ना? आप कितना खाना खाते हैं, ये खा रहे हैं, ये ऊपर सॉस होनी चाहिए, इसका ये फ्लेवर है, इसमें मस्टर्ड सॉस है, फ्ला फ्ला, सो मेनी कॉम्बो वी एप्रिसिएट विद इन एडिशन टू these taste which we appreciate on the tongue with the help of these
टेस्ट बड्स जो इसके साइड पे, और ये कंटिन्यूसली वॉश होते हैं ऊपर। आपका जो स्लाइवा है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट और कवरिंग योर ओरल कैविटी टंग, और वो आपका ये ऊपर की टेस्ट सारी जो आपने खाया पिया होता है उसको क्लियर भी कर देता है, क्योंकि नेक्स्ट सेंसेशन रिसीव भी करनी है और आपने खाना पीना भी अकॉर्डिंगली इसको पिक करना है। अच्छा, लेट मी फाइंड सम अदर पिक्चर। और जब उसको आप स्कीमेटिकली ड्रॉ करते हो तो कुछ ऐसा होता है। उनकी हम हेल्प क्यों लेते हैं? ताकि हमें वो स्ट्रक्चर समझ आ जाए कैसे, फिर हम उसको हिस्टोलॉजिकली पिक कर सके। एपिथेलियम आप देख रहे हो, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन केराटिनाइज्ड, और ये जो पेल व्हाइट जो आपको एक टिश्यू दिख रहा था, ये अंदर तो क्या है? द टेस्ट बड। ओके, ये टेस्ट बड पे तकरीबन 50 to 90 यू कहते हैं इसके अंदर सेल्स हैं, जो कि 3 तरह की वैरायटी पे मुश्तमिल है, ठीक है। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स सारी हिस्टोलॉजी छोड़ के सिर्फ टेस्ट बड पे नोट आ जाता है। आपने पूरा सर से पैर तक हिस्टोलॉजी पढ़ी और नोट क्या आ गया? कैन बी डिस्कस दीज फीचर्स और ड्रॉ एंड लेबल टेस्ट बड, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब आप इसको देख रहे हो, दैट इज द सरफेस और एपिकल रीजन। सरफेस का मतलब होता है इसका ये टॉप लेयर है इस तरफ, और देयर इज अ टेस्ट पोर, ठीक है, इतनी सी जगह है जहां से इसने अपनी सिक्रीशन लेनी सेंस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके सेल देख रहे हैं, 3 वैरायटी कौन सी है सेल की? द सेल्स ऑन द फ्रॉम स्टार्टिंग वेरी बेस एंड रीचिंग अप टू द टॉप आर द सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग कह लें, सस्टेंटिकुलर कह लें, ठीक है, सस्टेंटिकुलर सेल या सपोर्टिंग सेल। ये 2 तरह के होते हैं, लाइट और डार्क। डार्क को कहते हैं टाइप 1 और लाइट को कह देते हैं टाइप 2, राइट। फिर वैरायटी आती है इसके बाद द गस्टेटरी सेल या टेस्ट सेल भी इसको कहते हैं, और तीसरा नाम क्या है? न्यूरो एपिथेलियल। कैन वी रिपीट? गस्टेटरी डीलिंग विद योर टेस्ट, और टेस्ट सेल आसान जबान में नाम। और न्यूरो एपिथेलियल हमें क्या बताता है कि इसके बैक पे कोई सेंसरी एफरेंट आपकी नर्व एंडिंग्स होंगी जो आपका टेस्ट सेंसेशंस लेके ब्रेन तक लेके जानी है। सो कैन एनीवन गेस व्हिच नर्व कैन प्ले दिस पार्ट? हाँ, कि 7th नर्व भी इन्वॉल्व है बट नॉट विद द टेस्ट। 7th आपकी फेशियल इन्वॉल्व है, ठीक है, फेशियल की कॉर्डा टेम्पेनाई ब्रांच जो है दैट इज टेकिंग पार्ट। आपकी टंग की अगर नर्व्स लाई करें ना, इतनी सी टंग है, देयर आर 5 नर्व्स। लेट मी टेल द 5th ट्राइजेमिनल थ्रू लिंगुअल, ओके। 5th के बाद 7th पे आ जाए, व्हिच आई फॉरगॉट, द फेशियल गिविंग द कॉर्डा टेम्पेनाई। उसके बाद आप पोस्टीरियरली मूव करते हो, टंग में पीछे जाते हो, तो यू गेट द ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है, जो कि स्पेशल सेंसरी भी है और जनरल भी। उसके बाद यू गेट द वैगस नर्व, द स्वीप, ठीक है। और फिर मोस्ट आपका पूरा टंग के मस्कुलेचर जो है उसमें एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, आप वो हेडेनिक में पढ़ेंगे डिटेल, तो वो मस्कुलर स्टाइल के लिए 12th हाइपोग्लॉसल, ठीक है, मोटर नर्व है, राइट। तो इस तरह से आपकी इतने से पोर्शन है टंग का जो आपकी ये 5 किस्म के नर्व्स उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सो दैट वाज बाय द वे, सो दैट कि आपको याद रहे व्हाट स्ट्रक्चर्स आर अलोंग इट। इफ वी सी द डॉर्सम ऑफ योर टंग हिस्टोलॉजिकली, तो आपको ये इस किस्म से ये जो डिफरेंट पेपिला दिखाई देंगे, इनमें जो डीप बरेड पैलर बॉडी है ये टेस्ट बड्स होंगे, एंड डेफिनेटली मिकोजा है। तो सबसे मिकोजा के पोर्शंस आपने कहा था, हमने डिस्कस किए थे इन लेक्चर। तो क्या क्या होता है मिकोजा में? एपिथेलियम है, वेरी गुड। इसके नीचे लेयर, शाबाश, लैमिना प्रोप्रिया, और मस्कुलर मिकोजी व्हिच समटाइम्स मे और मे नॉट बी, लेकिन ये 3 चीजें आपको मिकोजा बनाती हैं। तो आप यहाँ पे 2 देख रहे हो, द एपिथेलियम एंड इसके नीचे ये लैमिना प्रोप्रिया, जो कि आपकी टंग पे, अगर आप इसको इस तरह समझ लो कि आपकी जो टंग है ना, इसमें क्रिस क्रॉस स्केलेटल मसल का एक लोथड़ा है, गोश्त का लोथड़ा, जिसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। अगर वो इसके साथ अटैच ना होती, लाइक अगर आपका ये लेमिना प्रोप्रिया अंदर पंजे गाड़े हुए टू बी स्टिच्ड जैसे कहते हैं टुवर्ड्स द मस्कुलर बल, अगर ऐसे ना होता तो आप शॉपर की तरह मिकोजा और टंग
अलग करते रहते हैं। जैसे अगर हम बोले तो पता चले वो मसल बल की एक तरफ भागी फिर रही है और मिकोजा शॉपर की तरह अलग भागा फिर है। तो अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम किया है कि एपिथेलियम के नीचे जो लेमिना प्रोप्रिया है वो टुवर्ड्स दिस मस्कुलर बल उसके अंदर उसको ग्रिप दिए हुए एक्सटेंड हुआ है, राइट। वन ऑफ द वेरी गुड रीजन दैट वी शुड एड्रेस। ये आप जाके वो मेरे पास ले आइए जो स्केच का, ओके, स्क्रीन की ही मदद ले लेते हैं। दैट इज द डॉर्सम ऑफ योर टंग और ये इसकी वेंट्रल सरफेस है, राइट, ठीक है। इस पे आप क्या देख रहे हैं, बहुत सारे ये जो थ्रेड लाइक ये वाले दे आर द फिलीफॉर्म हेयर लाइक, और जो आपको ये ब्रॉडर दिख रहे हैं दीज आर द फंगी फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब फोलिएट की कहानी हमने कहा था कि वो हमारे पास एडल्ट में नहीं रहते, राइट। और जो हमारे पास सर्कमवेलेट हैं वो यूजुअली क्यों नहीं दिखाई दे रहे। सर्कमवेलेट ये कि हमारा जो वी शेप सर्कस का हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में से आपने एक चीज देखी होगी कि इट डिपेंड्स अपॉन द सेक्शन यू टेक, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको एक दो क्लासेस में इंटरेक्शन हुआ तो आई यूज्ड टू टेल कि इट डिपेंड्स के सेक्शन कहाँ से लिया गया है। जैसे कि अगर आपकी पिक्चर यहाँ से ली जाए सारे स्टूडेंट आ जाओगे, वी लर्न के जी ये बैच में ये सब स्टूडेंट्स का पार्ट है, लेकिन अगर मैं पिक्चर सिर्फ उस एरिया की ले लूँ जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो क्या हम ये डिनाई कर सकते हैं कि यार वी आर नॉट इन द लैब? नो, उसमें क्या फ्लॉ था या उसमें क्या डिफरेंट बात थी कि हमने उसका व्यू ही डिफरेंट लिया, या हमने आपकी क्लास के सेक्शन किए तो अदरवाइज फुल सेक्शन है, फुल आप देख रहे हो, बर्ड्स आई व्यू देख रहे हो, सब दिख रहा है, लेकिन अगर इसको बीच में से काट दो तो हो सकता है सिर्फ लगे बॉयज की क्लास है, या सिर्फ पीछे वाला एरिया फोकस हो तो कैन बी जस्ट गर्ल्स, इज इट इट, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एग, ठीक है। सो एग, सेंट्रल एग यॉक इज देयर, अगर आप बिल्कुल सेंटर से सेक्शन लेंगे एग यॉक भी आएगा, एग वाइट भी आएगा। एज काटने पे सिर्फ एग वाइट आया, टेंजेंटियल या ओब्लिक सेक्शन है, स्टिल एग है, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते कि चूंकि उसमें एग यॉक नहीं है तो जी हम नहीं मानते कि ये एग था, ठीक है। इसी तरह आपने ग्लैंड्स के सेक्शन देखे होंगे, कभी उसकी राउंडेड लुक आती है अगर आपने उसको एक ट्यूब पकड़ ले स्ट्रेट काट दिया तो। अच्छा, अगर आप उसी ट्यूब को इस तरह रख के काटें तो क्या होगा, वो ओब्लीक सेक्शन आ जाएगा, और उसी ट्यूब को अगर लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन करके दिखाएं तो लंबाई के रुख आ जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हिस्सा नहीं है, आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स पैथोलॉजी में यही जो आप नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं ये पैथोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। तो अंटिल अनलेस यू नो द नॉर्मल स्ट्रक्चर तो आप एबनॉर्मल नहीं जान पाओगे, ठीक है। कि अगर आपको सही रास्ता नहीं पता तो आप गलत पहचान नहीं पाओगे, कि आप एक नॉर्मल सेल या नॉर्मल चीजें नहीं जानते तो आप उसी को ट्यूमर बना सकते हो, ऐसे है, ठीक है। सो वी शुड नो द नॉर्मल और उसकी लिमिटेशन। सो द रीजन इज आई एम एक्सप्लेनिंग कि अगर हमारे पास सर्कमवेलेंट नहीं आया हमारी ऑब्जर्वेशन में तो ये नहीं है कि टंग नहीं थी, इट डिपेंड्स कि सेक्शन कहाँ से लिया गया, राइट, ओके। सो दैट वाज द एपिथेलियम एंड दिस इज द लेमिना प्रोप्रिया एंड दैट इज पुटिंग द लाइक extension towards the center of, you can see this lamina propria to give a grip to the central muscular bulk, right? अच्छा, अब आप इसकी वेंट्रल सरफेस पे आ जाइए, it becomes the stratified squamous non keratinized, क्योंकि आपने यहाँ पे न्यूक्लियाई देख लिए हैं, कोई ये सारे आपके जो पेपिला है वो नहीं है, और मैक्सिमम आपको इसके मॉइस्चर दिख रहा है। अच्छा, अब हमने एड्रेस करना है कि मॉइस्चर का रीजन पकड़ना है, पूरी टंग पे है ना। So you see के anterior आपका portion of the tongue में you have got the anterior lingual glands, simple tubular acinar है but mixed variety है। mixed variety का क्या मतलब है, serous secreting भी होंगे और mucus secreting भी होंगे, okay। थोड़ा सा हम मिडिल में चले जाएं तो we get the glands of von Ebner's। अच्छा, ये जो डिफरेंट से नाम होते हैं यूजुअली वी डू नॉट रिमेम्बर, भूल जाते हैं क्या, यूजुअली साइंटिस्ट या डिस्कवरर के नाम पे होते हैं, ठीक है। द नेम गिवन टू दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑन द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ दैट वेरी ग्लैंड, आई थिंक सो, राइट। सो द ग्लैंड्स ऑफ वॉन एबनर्स आर प्योरली सीरस, वाटरी सिक्रीशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरी वैरायटी रह गई है ग्लैंड की इन योर टंग,
are the mucus glands of root. वो रूट के करीब है, जो टंग आपके अंदर रूट करीब है पोस्टीरियरली, ठीक है, उसके करीब है और उनका नाम ही है म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ रूट, सो दे आर प्योरली म्यूकस. अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसकी सीरस और म्यूकस, आई डोंट थिंक सो फर्स्ट ईयर में आपने उसका, अगर हम कट सेक्शन ड्रॉ करें तो कट सेक्शन लेट मी गेट, we are putting the pyramidal shaped cells of either serous or mucus like this. So how will we differentiate कि जी ये serous है और ये mucus है? There could be some helping points to identify. Okay, in the serous glands, let me mark it as mucus. You can focus it as well. We've got in serous the centrally placed rounded nuclei. Watery secretion ये प्रोड्यूस करेंगे. इनके ऑर्गेनाल डेफिनेटली हैं, दे आर आल्सो टेकिंग द स्टेन. सो जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे आपको कुछ ऐसी लुक नजर आएगी. और अगर वो म्यूकस सिक्रेटिंग आपने पोर्शन काट के देख रहे हो तो व्हाट इज गोना हैपन? द न्यूक्लियर आर गोना पुश्ड ऑफ टुवर्ड्स द पेरिफेरी, क्योंकि इधर का जो म्यूसिनोजन कंटेंट था इसने इसको धकेल दिया है और न्यूक्लियर कुछ इस किस्म के पेरिफेरी पे है. ठीक है, ये आपको जो बंच कभी दिखाई देगा ना तो लगेगा बिल्कुल एम्प्टी है. और ये किससे मिमिक करता है एट 4x कि हमें लगता है कि शायद ये एडिपोज टिश्यू तो नहीं है. एडिपोज का क्या था? सिग्नेट रिंग अपेरेंस. वेरी गुड, ये इसका कुछ याद है ताजी ताजी ऑस्पी. सो गुड, वेरी गुड. सो ये भी एम्प्टी लग रहा है और ये भी, लेकिन फर्क क्या है? अगर आप इसकी पार बढ़ाते जाओगे 10x पे ले गए हो, you will observe so many peripheral nuclei in this mucus acinus, right? और अगर एडिपोज टिश्यू है तो सिग्नेट रिंग वाली स्टोरी होगी और इनर चीज एम्प्टी होगी. Is it clear? और सीरस में तो बड़े वाजे आपको न्यूक्लियाई. तो जब हम कहते हैं ना मिक्स वैरायटी है इंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड की, तो ये दोनों सेक्शन होने चाहिए. और जब हम कहते हैं ना ग्लैंड्स ऑफ वॉन ज़ेपनर प्योरली सीरस, तो इस तरह के बंचेस सिर्फ मिलेंगे. और मोस्ट पोस्टीरियरली म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ रूट, वो वहाँ पे ये वाली सिर्फ वैरायटी मिलेगी. Is it clear? So that was all about for the tongue. Just a thing was left कि in the center आपके पास ये criss cross bundles हैं. Last but not the least, a very important thing that the skeletal muscles inside, ये longitudinally you can observe the peripheral nuclei और oblique set में भी है, और ये जो transverse section है इनके भी periphery पे आपने nuclei show करने हैं while your sketch drawing, isn't it? So I have a view of this as well. You can see and you can draw from here. The same sketch is the dorsal surface. This is the ventral surface, and the taste bud is very clearly marked here. You can see and you can draw from here along with the labeling, right? So thank you very much. इसकी dorsal surface से थोड़ा सा आप मुतवज्जो रहिए kindly. This is all for your OSPI. That these are the papillae all around on the dorsal surface, right? And the empty, this pale looking area on the edges here, you will observe the taste buds. This is the epithelium, and just below it is the lamina propria towards entering into your center muscle bulb. This is the muscle bulb, crisscross, vertical, horizontal, transverse, running skeletal muscles scattered all around. Okay, you can see at the end we find this tissue, and this is the ventral surface. The epithelium is now non-keratinized with no papillae on it, right? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, इस वाले स्लाइड में हमारे पास ग्लैंड्स वाजे नहीं है. We have to change or observe another slide so that you learn. ये डिफरेंट स्टेन है, हमारे पास डिफरेंट स्टेन होते हैं. मैलरी एजन, जिससे इसकी स्टेनिंग डिफरेंट है. रेड और ब्लू आपको कुछ दिख रही है. ओके, अगर हम इस एज पे, ये जो लाइटर आपको ब्लूइश शेड है, दीज आर द पेपिली, एंड यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. कैन यू सी इट? दिस इज होल द डॉर्सम ऑफ योर टंग showing various papillae all around, right? And buried inside the palar non-stained rather region are the
taste buds. अच्छा, लेमिना प्रोप्रिया आप देख रहे हो क्या ब्लूइश कलर ले रहे हैं, राइट? अच्छा, अब आप इनर टिश्यू की तरफ जाएं। ये जो अब रेडिश है, टिपिकल जो मीट का कलर होता है, देखा आपने, उसकी फॉर्म में डिफरेंट ये फाइबर्स रन करेंगे। These red one, this is the skeletal muscle. अच्छा, ये bunches दिख रहे हैं empty looking? Yes, ma'am. What could be they are? Yeah, mucus glands. ये प्योरली म्यूकस दिख रहे हैं, तो ये आपका म्यूकस ग्लैंड ऑफ रूट होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। सो दिस इज हाउ फर्स्ट ग्लैंस में लगता है कि शायद ये आपका एडिपोस टिश्यू है, बट लेट मी इंक्रीज द पावर, क्योंकि ये वंस आप एक दफा स्टडी कर लें आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑन 10x यू कैन सी वेरियस sections of it, could be these are rounded oblique one, but you can see on the periphery the nuclei, and if I can put the lines, they will be forming the pyramidal shaped cells, and you can see these skeletal muscles you are acclimatized। transverse sections पहचान लेंगे, skeletal आ जाए। दो आपसे अब सिर्फ इंडिविजुअली epithelium muscle ऐसा नहीं पूछा जाएगा, we want कि आप इसको टंग लिखे, बट यू शुड बी एक्लेमेटाइज्ड कि आपको इतनी ग्रिप आ जानी चाहिए कि कौन सा एलएस है, कौन सा ये एलएस आ रहा है, और द स्केलेटल मसल, ये ट्रांसवर्स, और इंटरवीनिंग आपको कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है। अगेन अनदर बंच ऑफ द म्यूकस ग्लैंड्स, ये आपके, और कुछ एडिपोज टिश्यू भी आएगा, यू कैन फाइंड adipose tissue as well. So that was the purpose of, let me move it towards 4x to find if there are some other glands we can be able to pick. This is whole the bulk of skeletal muscles. This is the mucus glands, and that's all I think. No other specified, just another mucus gland. Yeah, so that was lamina propria, the central skeletal muscle, and the associated bunches of mucus glands, right? Thank you very much.